Hello and welcome to day 3 of your Salsa Numerology workshop. And how are you all? And how was your experience past 2 days? Can you just write in the chat box? Let me know कैसा रहा आपका ये 2 दिन का सफर? And how was the learnings? Okay, and thank you so much. I received lot of assignments today. And बहुत it was very beautifully done and I think मैंने सबकी check करके I've send you all. अगर किसी की रह गई होगी I think end time किसी ने send की होगी तो I'll just check it and I'll send you by today evening or tomorrow morning. Okay, thank you Amandeep ji, thank you Alok ji, thank you Sanjeev ji, thank you so much, thank you and happy Guru Purnima to everyone. And it was so exciting to receive so many messages from all of you. It was really wonderful. Thank you so much. See, actually, we've just connected for 2 days and it's the third day today, but still the connection is there. And I'm highly obliged to get these messages. And those were really, really very wonderful messages. Thank you. Thank you so much, everyone. All the beautiful messages in the chat box. Thank you once again. So let me welcome Firoz ji, welcome Hendra ji, welcome Sunaina ji, welcome Amandeep ji, welcome M.H. Nargundo ji, welcome Naveed ji, welcome Mrs. Manjari ji, welcome Kaushik ji, welcome Manish ji, welcome Shraddha ji, welcome Anil ji, welcome Ganesh ji, welcome Alok ji, welcome Sanjay ji, welcome Dev Miglani ji, welcome San ji. Okay, so a gentle request to please put on your cameras so people are joining in. So we'll just wait for some time and please switch on your camera. It's a gentle request as today is the third day. So I don't want to see any blank screens here. And, it gives a very positive aura. So I think it should be a good interactive session or we share a good knowledge. Aapke cameras on hote hain, the vibes are very positive and the class aura is very positive. See, thank you so much for switching on your cameras. Okay. So today's session will also go on till 9 p.m. and be ready with your pen and notebooks. And it is a very, I must say, very learning एक बहुत experience रहेगा आज आपका and it will be very exciting indeed. So we'll be having a very exciting activity and I want each one of you to please participate and respond in the chat box. That is very, very important. I want everyone's response in the chat box and you have to be very loyal in this activity because agar aap loyal honge within some time, within 1.5 hour, so you'll be coming to know कि इस time पे आपका कौन सा number है जिसकी vibration strong है, कौन सा number है जिसकी vibrations weak है, and within 1.5 hour you will be ready and you'll be getting ready-made 36 remedies in front of you. I repeat, you'll be getting 36 remedies in front of you. So please just just participate in this activity, I must say. Okay. So let us quickly revise हमने क्या किया था अभी कल. We studied the master grid, that is Loshu grid, and how to prepare your own Loshu grid by placing your birth dates, your PND. And then we studied about the horizontal plane, the vertical planes, the diagonal planes, and we came to know about the arrow of strength and arrow of weakness in our life. So we studied about that. Then after that, we studied briefly about the mobile numerology. Again, I really focus on that because सबसे ज़्यादा जो vibrations हम carry करते हैं आजकल, so that is of our mobile number. And then we studied the concept of name numerology briefly, and बाकी in advanced sessions we'll be knowing how to correct name correction कैसे करना है, what is the technique, and studying all these concepts. See, जो अभी हमने अभी तक किया है, that is not even 5% what we are going to do in the advanced level. Advanced level is very vast. बहुत vast रहेगा and it will be very vast learning and you are all are going to enjoy it. And the way of my teaching is same as you have seen in these 3 days. Yes. तो मेरा क्लास में भी ना ऐसा ही रहता है. I'm professionally also like that. And जब
and it, I think it fun element भी होना चाहिए learning में, so that's very very important. And और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, so that is the brief understanding of number characteristics. That is very very important. आपने 1 to 9 numbers को अगर अच्छे से स्टडी कर लिया है तो मतलब आधी न्यूमरोलॉजी आपकी वही हो जाती है. So you have to deeply understand these numbers, what these numbers says, कहते क्या है हमारे ये 9 numbers. आज जो हम बात करेंगे, we'll be talking about the 4 main qualities of each number and each 9 planets also. But Uranus, Neptune and Pluto will be doing in the advanced courses in level 1. वो हम बाद में करेंगे. फिलहाल आज जो हम 9 planets के बारे में बात करेंगे, and in advanced courses we have 12 planets in Salsa numerology, so we'll be going to read that. Then we are going to decode the behavior of our personality number and destiny number. And through that, I'll be giving you the biggest remedy and solution to your problems in professional life and in your personal life. कि कौन सा नंबर है, हमें कैसे अपना पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर को यूज करना है to make our professional life better and to make our personal life better. So after that, I'll be telling you about the advanced levels, that is 1 to 5 levels, and the syllabus and structure of all the 5 levels, and how to become a professional numerologist within 1 to 2 months. And I really tell you कि जो हमारी कोर्स फी होती है ना, my students पढ़ते पढ़ते ही उनका कोर्स फी कंप्लीट हो जाती है, वो कवर कर लेते हैं. It is like that कि आप पढ़ते पढ़ते ही आप वो कोर्स फी जो है कवर कर लेंगे. So it is this much, and my duty is like मैं आप सबको न्यूमरोलॉजिस्ट तो अच्छा बना दूंगी, प्लस आई बी गिविंग, अब मैं आ रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो लेके आती हूँ ना. सो आई बी गिविंग सम ब्यूटीफुल टेक्निक्स टू यू ऑल टू हाउ टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ. सो मैं अपने क्लास में अपने स्टूडेंट्स को ना कुछ each day, each learning, तो कुछ ना कुछ नया I tell them. So that is my way. Okay, so please switch on your cameras. Again, a gentle request to everyone. Now it's the last time I'm telling you, not after that. And क्योंकि classes में तो क्या है कि cameras on ही रहते हैं, classes में cameras off हो ही नहीं सकते हैं. So foundation में I can just request you all, but in the classes you have to keep your cameras on. All right, fine. Okay, so let us go ahead and let us first learn the 9 different ways of handling the challenges in your life. कैसे हमने ये challenges को handle करना है. And ये जो 9 numbers हैं और ये behavior है, that we are going to learn, और बहुत कुछ बताते हैं वो हमारे बारे में. So let us decode, and let me just share the screen with you all. All right. So today we are going to learn about the brief behavior pattern of 9 numbers. So सबसे पहले जो हम बात करेंगे, so we'll be talking about number 1. Number 1. So number 1 is sun. Sun यानी father. Sun यानी king. Now let me know, every one of you, अब सन है, नंबर 1 है, किंग है, तो राजा की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? You can unmute and say, you can unmute or you can write in the chat box, whatever you want. So राजा की सबसे बड़ी क्वालिटी, we are going to, आज हम जो डिकोड करेंगे the 4 main qualities of each number, हम उस बारे में बात करेंगे. आगे एडवांस लेवल में तो मैं बहुत सारे पॉइंट्स बताने वाली हूँ, but today the 4 main points of each number we are going to talk about.
ठीक है, टेक केयर ऑफ इट्स सिटीजन्स। यस, जैसे आपने बोला मैडम लीडरशिप एंड अथॉरिटी, यू कैन पुट योर व्यूज इन द चैट बॉक्स, यू कैन पुट योर व्यूज इन द चैट बॉक्स, ओके। मैडम किंग जो है वो संप्रभु का आदेश है। प्लीज म्यूट एवरीवन, ओके। The main quality of a king, of number one, we see that is leadership. Leadership. Now, what you have to do, and leadership हम जहाँ बोलेंगे तो वहाँ पे obviously authority भी आएगी. So, leadership and authority. So now, what you all have to do, मैं points आपको बताऊंगी, and you have to rate yourself. You have to rate yourself from 0 to 10. एंड जो क्वालिटीज मैं आपको बता रही हूँ, इट इज नॉट कि आपका पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर 1 होना चाहिए या आपके ग्रिड में कहीं नंबर 1 होना चाहिए, नो, इट इज डू यू पोजेस दैट क्वालिटी, आपको लगता है आप में वो क्वालिटी है, एंड हो सकता है पहले नहीं थी, अब आप वो फील कर रहे हैं, सो उसके अकॉर्डिंग आपको 0 से 10 के बीच में अपने आप को पॉइंट्स देने हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे लीडरशिप के बारे में। सो विदाउट लीडरशिप देयर कैन बी नो किंग, कोई राजा हो ही नहीं सकता जिसमें लीडरशिप या अथॉरिटेटिव रोल ना हो। सो दिस पर्सन ही इज लाइक एवरीवेयर, ही इज वेरी अथॉरिटेटिव, लोग सुनते हैं उनकी, एंड इट इज नॉट लाइक दैट कि एक या दो लोग सुन रहे हैं। द पर्सन्स पर्सनैलिटी इज लाइक दैट कि जब भी बोलेगा सब उसकी सुनेंगे, चाहे वो अपने वर्क प्लेस में है। सो अगर द एम्प्लॉइज दोज आर वर्किंग अंडर दैट पर्सन, वो भी उसकी सुन रहे हैं, प्लस द बॉस, जो उसका बॉस है वो भी उसकी सुन रहा है। सो इट इज लाइक दैट, ही हैज दैट पर्सनालिटी। घर पे है, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल पे है, चाहे कहीं पे भी है, पीपल टेंड टू लिसन टू दैट पर्सन, उसके पास वो लीडरशिप, वो अथॉरिटी है। सो अपने आप लोगों ने अब अपने आप को पॉइंट्स देने हैं। सो क्या लगता है आप सबको कि कितने लीडरशिप स्किल्स आप कैरी करते हैं, एंड हाउ अथॉरिटेटिव यू आर? So give yourself point from 0 to 10 and please write in the chat box. I want to know. Write in the chat box. Okay, 8, 8. Good, great, excellent. Amandeep ji, 8. Okay. I want everyone to participate in this because अगर आप ये करेंगे तभी मैं आपको आपका भी करंट पोजीशन बता सकती हूँ। And you have to be very loyal. कम है तो कम है, ज्यादा है तो ज्यादा है, no issues. Okay, 6, 3, 8, 5. All right, so who is this 226 out of 10? Okay, great, great. So next, अब राजा है, राजा always carry an ambition. So the second point you can write ambition. Okay. सो राजा है तो अम्बिशियस तो होगा ही ना, तो कोई ना कोई गोल रहता है। हम कहते हैं ना कि बस ये पूरा भारतवर्ष मेरा है, ये पूरी टेरिटरी मेरी है, मुझे पूरा भारतवर्ष अपना बनाना है, मुझे इस कंट्री को कॉन्कर करना है। मतलब इट इज लाइक, तो राजा की अप्रोच हमेशा ऐसी रहेगी, एक अम्बिशन रहेगा, एंड एक मतलब हम कहते हैं ना ह्यूज पैशन टू कॉन्कर एवरीथिंग, जैसे राजा में रहता है। सो जो ऐसे लोग होते हैं ना, तो ये अपने लाइफ में ना कोई अम्बिशन या कोई ना कोई गोल लेके चलते हैं। इनकी लाइफ में कोई ना कोई गोल जरूर होगा, दे आर वेरी एम्बिशियस पीपल, एंड कोई ना कोई गोल इनकी लाइफ में जरूर होता है, और दे वांट टू अचीव दैट गोल, और उस गोल को अचीव करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। सो ऐसी पर्सनालिटी रहती है उनकी। So what do you think? How much ambitious you are? So please rate yourself and give yourself points from 0 to 10. All right, 10. Oh, great, great. Everyone is so ambitious here, huh? Great. Okay. Excellent. 9, 7, 10, 8. Okay. All right. Great. Fine. Now we come to the next quality. So what do you think? What is the attitude of a king? A king का attitude कैसा रहता है? Please write in the chat box. What is the attitude of the king? Let me know. एक किंग का, एक राजा का एटीट्यूड कैसा रहेगा? राजा है ना?
है. What else? काइंड तो कहीं से नहीं है. डोमिनेटिंग, यस. व्हाट एल्स? ईगोइस्टिक, यस. इट्स ईगोइस्टिक. अब राजा है, ईगो तो रहेगा. एंड आई थिंक लाइफ में एक हेल्दी ईगो होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम कहते हैं ना कि राजा तो कहेगा ना कि ये तो मेरी टेरिटरी है, मेरी टेरिटरी में बिना पूछे कोई कैसे आ गया. सो एक ये एटीट्यूड लेके राजा चलेगा. अब सन आता है. सन भी एक ईगो लेके आता है. अब लाइक यू नो कि सन विल ऑलवेज कीप ऑन बर्निंग. नो मैटर आपको वो कैसा भी लग रहा हो. तो किन्हीं को वो धूप बहुत अच्छी लगती है, किन्हीं को वो धूप चुभती है. बट सन विल से आई विल तो ऑलवेज कीप ऑन बर्निंग नो मैटर व्हाट यू आर फीलिंग. तो ईगो तो एक सन भी रखता है, एक राजा भी रखता है. सो ये लोग होते हैं, ये एक हेल्दी ईगो कैरी करते हैं कि कोई भी आके इनको कुछ ऐसे बोल नहीं सकता. नो बडी कैन से एनीथिंग टू देम कि अब कोई कुछ बोल के जा रहा है तो दे रिटेलिएट कि ठीक है, वो गलत क्यों सुने. अब कोई लोग होते हैं कि वही चीज को, उसी चीज को अंदर दबाते जाएंगे एंड यू नो मतलब वो चीज अंदर ही अंदर कैरी करते रहते हैं. सो इट इज लाइक दैट. जेलस नहीं लेके चलेंगे. वी विल कॉल इट एन हेल्दी ईगो. एक हेल्दी ईगो की तरह हम इसको लेंगे. सो व्हाट डू यू थिंक कि आप सब भी कितनी ईगो कैरी करते हैं? ऑलराइट. द सन्स एनर्जी इज गुड इन द ग्रुप, आई सपोज. ओके, ग्रेट, नाइस. ऑलराइट. एंड द लास्ट, एंड हम कहते हैं ना दिस इज द पावर ऑफ नंबर 1. सो दैट इज कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस इनमें भर भर के होता है. अब हम कहते हैं कि एक राजा अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखता है कि जो भी मैं डिसीजन ले रहा हूँ बिल्कुल ठीक है. इट कैन बी अ हार्श डिसीजन बट इट इज फॉर द होल कंट्री. पूरे राज्य के लिए वो एक डिसीजन होता है. बट वो एक डिसीजन जो भी लेता है कॉन्फिडेंस के साथ लेता है. एंड सेम कॉन्फिडेंस जब सनराइज होता है वो भी होता है. सन नोज कि भाई सनराइज भी रोज होएगा एंड सनसेट भी रोज होएगा. सूरज रोज उगेगा, सूरज रोज डूबेगा. तो एक ये कॉन्फिडेंस सन भी लेके आता है. तो ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं इन वॉट एवर मूव दे मेक इन देयर लाइफ, और अपने हर डिसीजन के लिए बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं. सो आप लोगों को क्या लगता है कितने कॉन्फिडेंट हैं आप लोग? सो गिव योरसेल्फ पॉइंट्स फ्रॉम 0 to 10. ओके, ग्रेट. 4, no issues. Good sun energy, number 1 energy is great in the group. Great. 3, 7, 6, 7. Good. Now what you have to do, अब हमने 4 points कर लिए हैं. So out of 40 total आपको करना है, and out of 40 आपके कितने points बन रहे हैं? Let me know in the chat box. गणेश जी 2, क्यों? कॉन्फिडेंस होना चाहिए. कोई बात नहीं, we will bring that in the classes. All right, 40 out of 40, great. 24, 36, 31, 30, like nice, great. अब आप इसमें ये ले लीजिए कि जिसके भी पॉइंट्स अबव 35 हैं, आई रिपीट, जिसके पॉइंट्स अबव 35 आ रहे हैं, दैट इज एक्सीलेंट पॉइंट्स. और जिनके 30 to 35 के बीच में आ रहे हैं, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड. 25 से लेके 30 के बीच में वी कैन कॉल इट ओके, एवरेज. बट अगर आपके पॉइंट्स 25 से कम आ रहे हैं, सो दैट इज द एरिया वेयर यू हैव टू वर्क ऑन. ठीक है, आई रिपीट, 35 से ऊपर है एक्सीलेंट मार्क्स, एक्सीलेंट रेटिंग. 30 to 35 है वेरी गुड. 25 से 30 है एवरेज ले सकते हैं. एंड 25 से अगर कम है then you have to work on this point. So how we have to work वो मैं आपको बाद में बताऊंगी when we'll be completing the number characteristics. ठीक है. So now we come to number 2. Now we come to number 2. Now number 2 is moon. Moon is mother. Moon is queen. सो नंबर 2 है, मदर है ना. तो आपको क्या लगता है व्हाट इज द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ अ मदर? व्हाट इज द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ अ मदर?
Okay. Yes, it's emotions. It's emotions. Moon stand for emotion or handling emotions, or it can mean emotional quotient also. So what is emotional quotient? It is like कि इन्हें अपने emotions को संभालना आता है. They know how to handle the emotions. किसी टाइम क्या होता है कि somebody is saying something to them, but वो उसी टाइम पे straight away retaliate करते हैं और उस चीज को संभाल लेते हैं. Doesn't affect it. कोई लोग ऐसे होते हैं कि वो उसको एकदम ओवर ले लेते हैं और बस आगे पीछे तोड़ा ताड़ी सब शुरू, इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वो बहुत एकदम ना ओवर मतलब उस चीज को लेके हो जाते हैं. एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको अगर कुछ बोलो तो वो इमोशंस अपने अंदर दबाते जाएंगे दबाते जाएंगे दबाते जाएंगे. इट इज लाइक कि दे विल, वो ऐसे होंगे कि किसी को ना अपनी बात बोलेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हम कहते हैं ना कि बस अब हमारी फीलिंग्स का घड़ा भर गया है, एक ही बार बस वो फूट जाना है. वो 8 10 15 साल आते हैं, उसके बाद एक ही बार वो घड़ा फटता है एंड दे बर्स्ट आउट. या तो वो बर्स्ट करेंगे, या अगर बिल्कुल भी बर्स्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं इमोशंस अपने शो करते हैं, तो वो स्ट्रेस लेवल पे आ जाता है एंड जो उनकी हेल्थ पे इफेक्ट करना शुरू कर देता है. सो दीज आर द सिनारियोज, आइदर यू आर कंट्रोलिंग योर इमोशंस, और आप ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं, या आप बिल्कुल ही दबा रहे हैं. सो क्या लगता है आपको कि आप कितने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं? सो प्लीज गिव योरसेल्फ पॉइंट्स फ्रॉम 0 to 10. ओके. 5 9 3 9 9. गुड गुड गुड. ऑलराइट. सो नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि आपने बताया, दैट इज नर्चर एंड केयरिंग. नर्चर, केयरिंग. नाउ अब मदर है ना, तो ऑब्वियसली मदर नर्चर और केयर तो करती है. सो ये लोग कैसे होते हैं? सी, अपने घर वालों के लिए हर कोई केयर करता है. अपने घर वालों के लिए हर कोई केयर करेगा, अपने क्लोज वंस के लिए हर कोई केयर करेगा. बट ये लोग ऐसे होते हैं कि इनका जेनरिक नेचर बहुत नर्चरिंग एंड केयरिंग होता है. अगर ये अपने वर्क प्लेस पे भी होंगे तो हर एक के लिए, अपने कुलीग्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज बॉसेस, हर एक के लिए केयरिंग होंगे. ये अगर अपने नेबर्स के लिए भी केयरिंग होंगे. इनको किसी भी टाइम कोई भी हेल्प के लिए बोलेगा तो दे आर ऑलवेज वेरी केयरिंग एंड हेल्पिंग. सो क्या लगता है कितने केयरिंग नर्चरिंग हैं आप लोग विद एवरीवन एज योर बेसिक नेचर? सो गिव योरसेल्फ पॉइंट्स फ्रॉम 0 to 10. ओके. गुड. वाह, 10 10 10 10 everyone. 4. Okay, you have to be loyal in this activity. That's great. One should be very caring. Okay. So next point of number 2 is empathy. Empathy. So empathy मतलब इमोशनल कनेक्शन होना. मतलब ये लोग ऐसे होंगे कि इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी, कोई आपको अपनी स्टोरी सुना रहा है, तो ये लोग उनके दर्द को समझते हैं, उनके दर्द में डूबेंगे. एंड कोई लोग ऐसे होते हैं कि हाँ भाई ठीक है, सुना रहे हैं ना, चलो इट्स ओके, बोल दिया ठीक है, मतलब दे डोंट केयर अबाउट व्हाट दे आर सेइंग, गॉड वो है. बट कोई लोग होंगे कि उनके दर्द के साथ कनेक्ट करेंगे, उनके दर्द में डूबेंगे. एंड वो एक एम्पैथेटिक नेचर होता है उन लोगों का. सो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक you are so much empathetic? So give yourself points according to that. All right, great, good. Everyone, please participate in the activity. Okay, good, nice. So the last point, and हम कहते हैं पावर होती है नंबर 2 की. This is the power of number 2.
So that is intuition. They are very intuitive. Intuitive. The quality of number 2 is good intuition power. बहुत अच्छी intuition power होती है. मतलब moon increases the instincts and linked to our subconscious mind. तो हम कहते हैं ना, सो इनको लगता है like they have that instinctive feelings, वो जो हम कहते हैं ना gut feelings या sixth sense जिसे आप कह सकते हैं. So they have that sixth sense, that gut feeling. तो क्या लगता है कितने intuitive हैं आप सब? So give yourself points according to that. Okay. All right. Okay. So now out of 40 for number 2. Out of 40 points for number 2. Great, good. Good. So good moon energy in the group. Moon energy is also very good in the group. Nice. Now we move on to number 3. So number 3 is Jupiter. Jupiter, Guru or Counselor. तो क्या लगता है सबसे मेन क्या क्वालिटी होती है एक गुरु में, एक काउंसलर में, एक टीचर में? क्या क्वालिटी होनी चाहिए? क्या स्किल्स होते हैं इनके? बिकॉज हम कहते हैं ना कि दे आर बोर्न विद दीज स्किल्स. So these are their teaching skills. Teaching skills. So they are born teachers and इनके टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं. इट इज नॉट ऑलवेज दैट दे आर टीचर, नहीं, बट इनको ना ज्ञान बांटना बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को सिखाते रहते हैं. कहीं भी बैठेंगे, किसी गैदरिंग में भी बैठेंगे ना, तो बस कुछ ना कुछ ज्ञान बांटते रहेंगे, कुछ ना कुछ अपने फिलोसफिकल रहेंगे या कुछ ना कुछ ये बताते रहेंगे लोगों को. सो एक ये बहुत कॉन्सेप्ट रहता है और ये ऑटोमेटिकली इनका अच्छा होता है. So what do you think? आप सबके टीचिंग स्किल्स कैसे हैं? So give yourself points from 0 to 10. How are your teaching skills? Okay, good. Nice. Okay, great. Now next, जैसे आप सबने बोला, that is, of course, that is knowledge. सो गुरु है तो नॉलेज भी बहुत रहेगा एंड ये हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे. मतलब इनको कहते हैं ना क्वेस्ट फॉर नॉलेज, जिसे हम कहते हैं देर हंग्री फॉर नॉलेज. बस जहां पे नॉलेज या ज्ञान बढ़ रहा है तो लेते जाओ लेते जाओ. एंड इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट एनी सब्जेक्ट और अबाउट एनी पर्टिकुलर टॉपिक. इट इज अबाउट एवरीथिंग. मतलब जो भी इनको होता है ना, कुछ भी नई चीज होती है तो इनको शौक होता है कि हमें हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए. दे हैव दैट क्वेस्ट फॉर नॉलेज. सो क्या लगता है आपको कितने नॉलेजेबल हैं आप लोग? सो गिव योरसेल्फ पॉइंट्स फॉर नॉलेज. ओके, गुड. ऑलराइट, ग्रेट. सो नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज एन अप्रोच ऑफ अ गुरु? एक गुरु की क्या अप्रोच रहती है? एक गुरु की क्या अप्रोच रहती है? Can anyone let me know in the chat box what is the approach of a guru? गाइडेंस नॉलेज तो हो गया, बट एक अप्रोच कैसी होती है? कहते हैं ना, आप लाइफ की तरफ क्या अप्रोच रहती है इनकी? सो इट इज ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिवनेस.
सो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं ये लोग लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, इनकी लाइफ की तरफ ना बहुत एक पॉजिटिव अप्रोच रहती है, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचते हैं, दे विल नेवर थिंक नेगेटिव। एंड मतलब इतना पॉजिटिव सोचेंगे कि अगर इनके साथ कुछ बुरा भी हो रहा हो ना, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा निकालेंगे। लाइक अगर इनको कोई ठग भी कर रहा है, मतलब हम कहते हैं ना, कोई इनको ठग करके चोरी करके भी इनके घर में चला जाएगा ना, तो देवर लाइक हाँ कोई बात नहीं, शायद हमारे कर्मा ऐसे होंगे तो हमें देने होंगे इनके, तो दे दिए। सो इट इज लाइक कि अपनी जो हम कहते हैं ना कि बुरी से बुरी कंडीशन में भी ये कुछ ना कुछ उसमें भी पॉजिटिव ढूंढते हैं। सो दे आर ऑलवेज वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ। सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ मच optimistic you are, or how much positive approach you have in your life? So give yourself points. Okay, good, great, nice. 100 नहीं देने, out of 10 दो, no 100. Great. So guru है ना, so they are always righteous. So righteousness. सो इधर राइटियसनेस डजंट मीन धर्म, धर्म नहीं हम लेंगे इसमें, और यहाँ रिलीजन से नहीं हम कहते, बट हम कहते हैं कि एक ना ये बड़ा कॉन्सेप्ट रहता है इनमें कि क्या सही है क्या गलत है। हमेशा सच्चाई का साथ देना, हमेशा हम कहते हैं ना न्याय का साथ देना, तो कभी भी गलत चीज नहीं बर्दाश्त करते हैं। मतलब अगर ये किसी कोर्ट रूम में भी जाएंगे ना, तो कहते हैं ना गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, तो इनको वो कसम खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर इनका कोई अपना भी वहां पे खड़ा होगा, स्टिल दे विल गो फॉर व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज रॉन्ग। तो हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। सो बताइए अब कितने आप लोग राइटियस हैं अपनी लाइफ में। सो गिव योरसेल्फ पॉइंट्स आउट ऑफ 10। गुड। एंड इट इज नॉट ऑलवेज द, मतलब कि हाँ नंबर 3 आप हैं कि नहीं है, इट इज लाइक द वे यू आर बिहेविंग इन योर लाइफ। चलिए नंबर 3 के बाद चल रही है, आज गुरु पूर्णिमा भी है, सो लेट मी आस्क यू कि आप सबको, लाइक यू आर कनेक्टेड विद मी सिंस 3 days, सो आप सबको मेरी टीचिंग स्किल कैसी लगी? लेट मी आस्क यू ऑल, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आप सबको मेरी टीचिंग स्किल्स कैसी लगी? थैंक यू, थैंक यू सो मच। इजी कनेक्टिंग, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगी, वेरी एक्सीलेंट कमेंट्स तो मुझे बहुत मिल रहे हैं, बट आई डोंट हैव नंबर 3 इन माय पर्सनालिटी और डेस्टिनी, रादर आई डोंट हैव नंबर 3 इन माय ग्रिड। मेरे ग्रिड में भी नहीं है, बिकॉज अभी क्वेश्चंस बहुत आ रहे थे मेरे को कि मैम हमारे ग्रिड में तो ये नंबर नहीं है या नहीं है, बट स्टिल वी हैव दैट क्वालिटीज। और ये इट इज लाइक कि यू आर अवेयर ऑफ इट, यू हैव टू यूज दैट नंबर इन योर लाइफ। मतलब हमें कहते हैं कि हमें उस नंबर की पावर को लेना है अपनी लाइफ में। सो आई एम वर्किंग ऑन नंबर 3। ऑब्वियसली अगर मेरे ग्रिड में नहीं है, तो अभी इस टाइम पे आई एम वर्किंग। एंड जब आप उसकी स्किल्स पे वर्क करते हैं, उनके पॉइंट्स उनके एट्रीब्यूट्स पे काम करते हैं, तो ऑब्वियसली वो नंबर की स्ट्रेंथ आप में आती ही आती है, उस नंबर की पावर आप में आप फील करेंगे ही करेंगे। बिकॉज इन एनी वे यू आर यूजिंग दैट एट्रीब्यूट्स, आप उन एट्रीब्यूट्स को अपना रहे हैं। सो इट इज नॉट ऑलवेज अगर कि नंबर आपके ग्रिड में है नहीं है वो आपको ब्लेसिंग दे रहा है नहीं दे रहा, नो, बट इफ यू आर यूजिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट नंबर, you're working on that number, तो obviously वो आपको blessing आपकी लाइफ में लेके ही आएगा। So this is the thing why I asked you all about it. Thank you for the lovely comments. Okay, now we talk about number 4. So number 4 is Rahu. राहु का जमाना है आजकल। So राहु को हम ड्रैगन हेड भी कहते हैं, एंड राहु इज अ शैडो प्लैनेट। राहु इज अ शैडो प्लैनेट। चलिए आज हम क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ नंबर 4, दैट इज राहु? कैन यू ऑल टेल मी इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ नंबर 4? क्वालिटी, ओके, मतलब बेसिक नेचर क्या होता है इन लोगों का, कैसे होते हैं, बेसिक नेचर क्या रहता है इनका?
They are organized, disciplined, systematic. Organized, disciplined, systematic. So बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं लोग, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत सिस्टम, मतलब आप इन लोग इनके घर में जाओगे ना, आपको मजा आ जाएगा, मतलब हर चीज एकदम ऑर्गेनाइज होती है। एंड यू सी देयर अलमीराज, वो कपड़े भी होते हैं ना पूरे रैक में एक के ऊपर एक प्रॉपरली रखे हुए। इनके शू रैक्स देखेंगे प्रॉपर अच्छे से मैनेज होते हैं। इनके आप बुक शेल्फ्स देखेंगे बहुत सिस्टम से, बहुत सिस्टमैटिक वे से इनके जो बुक्स हैं वो दे कीप इन द बुक शेल्फ्स। और अगर घर पे इनका सब कुछ, अगर ये कहीं जॉब से भी आ रहे हैं, आप देखते हैं कि घर पे कुछ फैला हुआ है तो ये खुद ही ठीक करने लगेंगे। तो बहुत ज्यादा ही ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन्ड और सिस्टमैटिक रहते हैं। आपको क्या लगता है कि आप लोग कितने ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन्ड या सिस्टमैटिक हैं? सो प्लीज गिव योर सेल्फ पॉइंट्स, रेट योर सेल्फ बिटवीन 0 to 10। एंड जो हम कहते हैं क्वालिटी को यूज नहीं कर रहा, 4 भी होते हुए ये क्वालिटी को यूज नहीं कर रहे हैं, दे हैव टू यूज दिस क्वालिटी, वही नंबर 4 काम खराब कर रहा है, वही नंबर 4 काम खराब कर रहा है। खैर, आई हैव टू वर्क हार्ड ऑन दिस नंबर। मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, आई कन्फेस, बट स्टिल है यहाँ पे कोई मेरे भाई बहन उन नंबर वाले। ग्रेट, नाइस। चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ नंबर 4। हर एक नंबर को मैं इंटेलिजेंट तो कहती हूँ, इंटेलिजेंस हर नंबर पे है, बट हर नंबर की क्या होता है कि एक अपनी ही इंटेलिजेंस एक पर्टिकुलर फील्ड में होती है। राहु नंबर 4 जो हम कहते हैं, सो दीज पीपल आर वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल, स्पेशली इन द टेक्निकल फील्ड। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। And they are highly connected with technology. आप इनको देखेंगे, they are very good in डिजिटल फील्ड, डिजिटल मीडिया ले लें, कंप्यूटर्स ले लें, आईटी सेक्टर ले लें, ऑनलाइन फील्ड कोई भी ले लें, वहां पे बहुत अच्छा ये करते हैं। एंड स्पेशली दे हैव ग्रेट लव फॉर गैजेट्स। कोई भी नया, मतलब गैजेट्स ये बेशक ले पाए चाहे नहीं ले पाए, बट इनको ना वो क्रेविंग रहती है, वो इंटरेस्ट रहता है कि हाँ भाई क्या चीज नई आई है, नया आईफोन आया है, आईफोन 14 आ रहा है, 15 आ रहा है, व्हाट इज द लेटेस्ट, आईपैड आ रहा है, व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन, या कुछ भी आप मतलब आप देखते हैं कि व्हाट न्यू वॉचेस का इनको बहुत शौक होता है, नई नई कलेक्शन का वॉचेस का इनको बहुत शौक होता है। PS4, PS5 कौन सा नया कलेक्शन आ रहा है, तो दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ गैजेट्स। क्या लगता है कितने टेक्निकली आपको लगता है कि आप लोग बहुत स्ट्रांग हैं, टेक्नोलॉजी प्रिय हैं? तो गिव योरसेल्फ पॉइंट्स। ओके, नाइस, ऑलराइट। श्रद्धा जी 1, कोई बात नहीं, we will activate these numbers, don't worry. Next, what is their approach? Like, मतलब हम कहते हैं ना कि इनकी जो थिंकिंग कैसी रहती है नंबर 4 की। What is the thinking and approach of number 4? Okay, what else? Okay, what else? No. They have an out of box thinking. इनकी एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है, एंड दे आर वेरी इनोवेटिव एंड दे कैरी अनकन्वेंशनल आइडियाज। दे आर इनोवेटिव and carry unconventional ideas. ठीक है? Now, Rahu is all about unconventional things. Their ideas, their approach is very unconventional. मतलब आम लोगों से ना ये हटके सोचते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है। लाइक सारे अगर इस रास्ते जा रहे हैं कहेंगे नहीं भाई हमने तो इस रास्ते जाना है, एंड
हम कहते हैं ना, जहां पे आपकी थिंकिंग खत्म होती है शायद उनकी सोच शुरू होती है, उल्टी सोच कह सकते हैं, इन अ पॉजिटिव वे। सो दे वांट टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट इन लाइफ, जो नॉर्मल लोगों से हटके होती है। एंड यू विल सी कि जितनी भी मैक्सिमम जो इन्वेंशंस हुई हैं, साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनका नंबर 4 बहुत एक्टिव होता है। जिन्होंने एरोप्लेन्स बनाए हैं या व्हाट ऑल दे आर इन्वेंटिंग, तो ये सब आप देखेंगे कि ये हमें नंबर 4 में ये चीजें मिलती हैं। एंड बहुत इनोवेटिव होते हैं ये लोग, इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज, ये कुछ भी करेंगे ना तो इनका एक ना अप्रोच लाइफ के बहुत आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच रहता है। सो क्या लगता है आप लोग कितने इनोवेटिव हैं? सो गिव योरसेल्फ पॉइंट्स फ्रॉम 0 to 10। गुड, नाइस, 8, 5, 7, 4, नाइस। नाउ राहु है, सो मटेरियलिस्टिक तो होगा। So these people are very materialistic. Rahu amplifies the desire. So they are very materialistic people and मतलब इनको है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, एक चीज की क्रेविंग खत्म नहीं होती है तो दूसरे की पहले ही शुरू हो जाती है कि अभी भाई ये ले लिया, वो भी चीज चाहिए मेरे को। सो ये इनका एक एटीट्यूड रहता है। एंड दे आर नेवर सेटिस्फाइड, मतलब बहुत इनका डिजायर्स कुछ ना कुछ रहता है। बट आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो इन लाइफ, ऐसी थिंकिंग होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां आपकी डिजायर्स खत्म हो जाती है, जहां आप कंटेंटेड हो जाते हैं, वहां आपकी ग्रोथ रुक जाती है। सो फॉर अ गुड ग्रोथ आपको एक डिजायर होनी बहुत जरूरी है। कुछ भी पाने की होती है ना डिजायर, इच्छा होती है, तो उसके लिए यू वर्क हार्ड। बट जहां आप कंटेंटेड हो जाते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कंटेंटेड हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं अपनी लाइफ से, तो वहां पे आपकी ग्रोथ रुक जाती है। एंड आई ऑलवेज से, ऑलवेज ड्रीम बिग, हमेशा बड़ा सोचिए। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा ही होएगा। एंड मतलब मैं ये कहती हूँ कि जो हम सोते हुए देखते हैं, दोज आर नॉट ड्रीम्स। ड्रीम्स ऐसे होने चाहिए जो आपको सोने ही ना दे। सो इट इज लाइक दैट। सो बड़ी बड़ी डिजायर्स रखें, दैट इज गुड। सो क्या लगता है आप लोगों को कितने मटेरियलिस्टिक अप्रोच है आपकी लाइफ की तरफ? सो गिव योरसेल्फ पॉइंट्स। ओके, ग्रेट, नाइस। सो चलिए दे दीजिए अपने आप को आउट ऑफ 40 पॉइंट्स फॉर नंबर 4। 40 पॉइंट्स फॉर नंबर 4। कोई बात नहीं, अननेसेसरी डिजायर्स हैं, चलेंगी, कोई बात नहीं, डिजायर होनी चाहिए। ओके, ऑलराइट। सो आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन नंबर 4, काफी लोगों को यहाँ पे। ओके, राहु का जमाना है, सो ग्रेट। चलिए, सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू नंबर 5। नंबर 5, so नंबर 5 is Mercury, एंड मर्करी को हम प्रिंस भी कहते हैं। सो मर्करी का मेन क्या पॉइंट रहेगा? दैट इज दे हैव गुड, हम कहते हैं ना कि ये इनका ब्रह्मास्त्र है। सो टेल मी व्हाट इज द मेन थिंग, हम कहते हैं ना एक पावर होती है जो नंबर 5 की है, व्हाट इज देयर पावर? व्हाट इज देयर पावर? कैन यू वन टेल? ऑलराइट, इट्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। सो दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। एंड दे हैव अ वेरी गुड स्पीच,
मतलब जब भी ये बोलेंगे ना बहुत अच्छा बोलेंगे, और इनकी कम्युनिकेशन ऐसे रहेगी जहां दो लोगों की लड़ाई लगी हुई है ना, तो दे विल बी द मीडिएटर्स कि हाँ भाई उसको सुलझा देंगे। बहुत अच्छा बोलते हैं, पीपल लव टू लिसन टू देम। एंड इनकी पावर होती है, हम कहते हैं ना कोई भी काम नहीं बन रहा, ये बातों के ही तीर से जीत जाएंगे। ये बस बातें ही करें तो जीत जाएंगे। मैनी अ टाइम्स वी टेक कंसल्टेशन, आई टेक कंसल्टेशन, कोई काम नहीं बन रहा, कोई प्रॉपर्टी का काम नहीं बन रहा, तो ऑलवेज से कि नहीं, कॉल देम, 2 3 4 बार बात करो, आप अपनी बातों से ही अपना काम बना लोगे। सो दे हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन, दे हैव वेरी गुड स्पीच। सो क्या लगता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं? सो गिव योरसेल्फ पॉइंट्स एवरीवन। ओके। एंड कहीं पे भी गैदरिंग ग्रुप में होंगे ना, लोग इनको सुनना चाहते हैं, दे फील गुड लिसनिंग टू दीज पीपल। गुड। ऑल राइट। नाइस। So next point of number 5 is balanced emotions. Balanced emotions. So they have very balanced emotions and they know how to control their emotions. तो कोई भी लाइफ में कंडीशन होएगी ना, सपोज बहुत अच्छी से अच्छी भी कंडीशन इनके लाइफ में होगी, तब भी ना ये ज्यादा एक्साइट नहीं होंगे, नॉर्मल रहेंगे। और कोई भी बुरी से बुरी सिचुएशन भी इनकी लाइफ में आएगी, तब भी एकदम फॉल नहीं हो जाते हैं या दुखी नहीं हो जाएंगे, तब भी बैलेंस रहेंगे। सो दे आर ऑलवेज बैलेंस, की ना बहुत अच्छे टाइम पे बहुत खुश होना, ना बुरे से बुरे टाइम पे एकदम दुखी होना। दे ऑलवेज बाउंस बैक इन देयर लाइफ। इनफैक्ट अपने रिलेशंस में भी ऐसे ही होते हैं, अपने रिलेशंस में भी दे आर वेरी मच बैलेंस्ड, ना ज्यादा ना कम। सो ऐसा रहता है इनका अप्रोच लाइफ की तरफ। सो बताइए how balanced emotions you have. So give yourself points, everyone. Okay, good. Nice. All right. So what is the approach of number 5? नंबर 5 की अप्रोच कैसी होती है? नंबर 5 की अप्रोच कैसी होगी? Let me know in the chat box. थिंकिंग कहते हैं ना, कैसी थिंकिंग होती है इनकी? Let me know. What else? What else? So logical and analytical. Logical, analytical. Now they have a very logical and analytical mind. बहुत लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग होती है। एंड मतलब इनको लॉजिकल रहना बहुत पसंद रहता है, हर चीज के पीछे लॉजिक्स देखते हैं, हवा में तीर नहीं मारेंगे। तो हम कहते हैं ना ऐसे लोग कि बस पेपर पेन लिया, एनालाइज शुरू किया, बहुत एनालिटिकल होते हैं, एक एक चीज की तह तक जाएंगे, देखेंगे, एंड बहुत लॉजिक्स के साथ चीजों को लेते हैं। तो दीज आर लाइक दैट। और इनको बहुत अच्छा लगता है कि चीजों के प्रोस एंड कॉन्स को देखेंगे, एंड उसके पीछे के लॉजिक्स को देखेंगे। सो क्या लगता है कितने लॉजिकल और एनालिटिकल हैं आप लोग? सो गिव योरसेल्फ पॉइंट्स फॉर दैट। 10 10 9 9 गुड। ऑलराइट, ग्रेट, नाइस। सो नेक्स्ट is the long term vision. सो इन लोगों की जो अप्रोच होती है ना, लाइक हम कहते हैं ना, राजा का बेटा है, वो तो सोचेगा ना कि मैंने भी एक दिन राजा बनना है, मैं भी एक दिन राजा बनूंगा, तो एक वो लॉन्ग टर्म सोच लेके चलता है। सो वैसा रहता है। और ये लोग जो होते हैं ना,
ये अगर सपोज किसी बिजनेस में भी जा रहे हैं तो ये बिजनेस में भी देखेंगे कि अपना आगे का 15-20 साल का पूरा लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हैं कि कैसा रहेगा, पूरी प्लानिंग के साथ चलते हैं। कहीं अगर ये अपने किसी ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तब भी पूरी प्लानिंग के साथ जाएंगे। सो हर चीज इनकी लाइफ में ना प्लानिंग के साथ चलता है, तो बहुत लॉन्ग टर्म की विजन रखते हैं ये लोग। सो क्या लगता है कितनी लॉन्ग टर्म विजन है आपकी? हाउ इज योर विजन? सो गिव योरसेल्फ पॉइंट्स फॉर दैट। ओके, गुड, नाइस, ग्रेट। तो दे दीजिए अपने आप को आउट ऑफ 40 पॉइंट्स फॉर नंबर 5। आउट ऑफ 40 पॉइंट्स फॉर नंबर 5। ओके, ऑल राइट, गुड, नाइस। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वी कम टू नंबर 6। सो नंबर 6, वन ऑफ माय फेवरेट, दैट इज वीनस। और वीनस को हम प्रिंसेस भी कहते हैं। सो क्या लगता है आपको, जब वीनस या प्रिंसेस के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहली चीज आपके माइंड में क्या आती है? व्हेन यू थिंक ऑफ अ प्रिंसेस, तो सबसे पहली चीज आपके माइंड में क्या आएगी? यस, लग्जरी इज द थिंग, आई नो, बट व्हाट इज द, मतलब होता है ना कि एक बार देखा प्रिंसेस को तो कैसा लगता है? So what is the thing that comes? Yes, it's beauty, it's glamour. Beauty, glamour. सो प्रिंसेस है तो इनको ग्लैमर बहुत पसंद है, ब्यूटी बहुत पसंद है। कहीं भी जाएंगे ना तो बहुत एकदम कहते हैं ना पार्टी में बन ठन के जाना। एंड इट इज नॉट ऑलवेज कि दे आर, मतलब कि दे आर वेरी वेल प्रेजेंटेड, वेरी वेल प्रेजेंटेबल पीपल, वेरी मतलब हम कहते हैं ना हर जगह, सपोज कहीं इन्होंने मार्केट भी जाना है तो इट इज नॉट लाइक दैट कि बस चप्पल डाली और चल पड़े। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। दे विल बी ऑलवेज लाइक कि हाँ भाई पूरे वेल ड्रेस्ड होंगे, वेल प्रेजेंटेबल होंगे, इस तरह के लोग होते हैं। एंड सेम गोज फॉर द मेल ऑल्सो। इट इज लाइक फॉर द मेल ऑल्सो कि इन्होंने कहीं भी जाना है, देयर शर्ट शुड बी वेल प्रेस्ड, पैंट्स क्रीज में होनी चाहिए, प्रॉपर शूज पॉलिश होने चाहिए, वॉच होनी चाहिए प्रॉपर। सो बहुत इनका ये एक रहता है माइंड में। सो क्या लगता है कितना आप ग्लैमरस हैं एंड कितना आपको ब्यूटी पे ध्यान रहता है? हाउ वेल प्रेजेंटेबल, वेल ड्रेस्ड यू आर? सो दीजिए अपने आप को पॉइंट्स फॉर वीनस, ब्यूटी एंड ग्लैमर। ओके, गुड, नाइस। नेक्स्ट, नेक्स्ट जैसे कि आप सबने बोला, दैट इज लग्जरी। लग्जरी, नाउ Venus number 6 also stands for luxurious things, and always they always want luxuries in life. उनको हमेशा लाइफ में ना लग्जरीज चाहिए होती हैं। लाइक अगर ये किसी होटल में भी स्टे करना होगा ना तो दे विल ऑलवेज लुक कि नहीं बढ़िया बढ़िया होना चाहिए, गुड रिजॉर्ट एंड गुड होटल। रहेंगे तो रेडिसन में ही रहेंगे, तो ऐसे नहीं आए माए किसी होटल में। एंड इट इज लाइक ऐसा नहीं है कि इनके शायद पैसे अकाउंट में उतने ही हो, बट स्टिल वो अपना ठाट से रहेंगे। और कोई लोग क्या होते हैं, बहुत पैसे भी होते हैं बट स्टिल दे थिंक कि नहीं क्या जरूरत है, इतना क्यों खर्चना है आपको अपनी लग्जरीज में। बट ये वाला कॉन्सेप्ट इनके माइंड में रहता है कि जहां रहना है बढ़िया से बढ़िया प्लेस में रहना है, तो इनकी एक चाह वैसी रहती है। सेम अगर इनको ट्रैवल करना है तो दे विल ऑलवेज प्रेफर कि चलो बाय एयर ट्रैवल करते हैं, क्या धक्के खा के आगे पीछे जाना है। सो ये कॉन्सेप्ट इनके माइंड में बहुत रहता है। सो दे लव लग्जरी अराउंड। सो कितने लग्जूरियस हैं आप लोग? दे दीजिए अपने आपको पॉइंट्स फ्रॉम 0 to 10। Okay, nice. Great, nice. So the next point of Venus is sensuality.
हम बहुत रोमांटिक होते हैं ये लोग. दीज पीपल आर वेरी वेरी रोमांटिक. मतलब कैंडल लाइट डिनर्स और डेट्स पे जाना उनको बहुत पसंद रहता है. एंड द मेन थिंग इज टच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. सो टच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. सो क्या लगता है आप लोगों के कितने सेंशुअस हैं आप लोग? सो गिव योरसेल्फ पॉइंट्स फ्रॉम 0 to 10 फॉर सेंशुअलिटी. राइट, गुड, नाइस. So Venus है ना, so obviously they are very artistic and entertaining people. Artistic and entertaining people. So these people are very artistic. मतलब कोई ना कोई आर्ट इन्होंने ना सीखा रखा होगा. लाइक बी इट म्यूजिक हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग. मतलब कि ये उसमें इनका जो बहुत ज्यादा दे आर गुड एट इट. एंड कोई ना कोई क्रिएटिव फील्ड में ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. कुछ ना कुछ सीखा होगा इन्होंने. और बहुत एंटरटेनिंग होते हैं. लाइक जैसे हम कहते हैं ना, पार्टी की जान बन जाना. तो दे आर लाइक दैट कि कहीं पे भी जाएंगे तो पीपल आर लाइक कि जो उनके फैमिली मेंबर्स भी होंगे कुछ भी, कि हाँ ये वहां पे होने चाहिए, दे शुड बी देयर. तो इनकी प्रेजेंस बहुत मैटर रखती है. बहुत एंटरटेनिंग लोग होते हैं ये लोग. सो क्या लगता है कितने आर्टिस्टिक एंड एंटरटेनिंग है आप सब? दीजिए अपने आप को पॉइंट्स. ओके, वीनस एनर्जी इज ग्रेट इन द ग्रुप. सी, आई हैव द बेस्ट ऑफ द लॉट. या, इवन एंड आई थिंक वीनस अच्छा होना चाहिए सबका. ग्रेट, nice. So give yourself points for number 6 out of 40. Out of 40. Okay. Good. Very nice. Now, number 7. ये मैं सबका देखना चाहूंगी एक बार. Number 7. So this is Ketu. So number 7 is Ketu. And Ketu is also a shadow planet. So what do you think the biggest क्वालिटी केतु के बारे में आप जब सुनते हैं तो व्हाट डू यू फील? क्या है केतु? यस, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, spirituality. Now, these people are very spiritual. Now, the Ketu is the planet of enlightenment. तो दे आर वेरी स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिस मेडिटेशन ऑल्सो. एंड बहुत बार मैंने देखा है कि इन लोगों से ना इजीली मेडिटेशन होती भी नहीं है. दे कांट मेडिटेट इजीली. बट इनके पास एक यूनिवर्सल कनेक्ट और यूनिवर्स पावर होती है, जो हम कहते हैं कि लोग इतने सालों से करते हैं मेडिटेशन बट स्टिल उनको वो कनेक्शन नहीं फील होता. बट ये लोग अगर मेडिटेशन शायद 2-3 बार ही करेंगे ना, तो इनको वो वाइब्रेशंस फील होने शुरू हो जाते हैं. इनको एक कनेक्ट फील होने शुरू हो जाता है यूनिवर्स से. So that is कि, और especially they are very much interested in occult sciences. So क्या लगता है कितने spiritual हैं आप लोग? So give yourself points from 0 to 10 everyone for number for spirituality. Okay. So next is, अब नंबर 7 है. कहते हैं कीड़ा रहता है दिमाग में. क्या दिमाग में कीड़ा रहता है इनके? क्या बताइए. Okay. So they are very research oriented. They are very research oriented people. Now these people go deep in the research. मतलब हम कहते हैं ना कि किसी चीज की भी तह तक चले जाना, मतलब बिल्कुल इनर ट्रुथ तक देखना कि भाई क्या है इसका इनर ट्रुथ. स्पेशली इन ऑकल्ट साइंसेस इनको बहुत इंटरेस्ट रहता है. एंड हम कहते हैं ना, अगर ये उसकी तह तक नहीं पहुंचते तो इनको शांति नहीं मिलती है.
सो इनका ये माइंडसेट ना वैसा रहता है, स्पेशली फॉर ओकल्ट साइंसेस। सो क्या लगता है कितने रिसर्च ओरिएंटेड हैं आप लोग? सो गिव योरसेल्फ पॉइंट्स फ्रॉम 0 to 10। ओके, गुड, नाइस। yes, they can be good detective also, yes, of course, बट ज्यादा इनका स्पिरिचुअलिटी में रहता है माइंड, रिसर्चिंग माइंड फॉर डिफरेंट मोडालिटीज। ओके, गुड। नेक्स्ट, सो केतु है, तो कहीं ना कहीं केतु डिटैचमेंट लाता है, आइसोलेशन लाता है, डिटैचमेंट, आइसोलेशन ना। केतु मीन्स डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली डिजायर्स। अब राहु है वो मटेरियलिस्टिक है, बट जो केतु है वो आपको एक वर्ल्डली डिजायर से ना दूर लेके जाता है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर लेके जाता है। एंड एट टाइम इन लोगों को आइसोलेशन बहुत पसंद है, आइसोलेशन एज इन कि इनको अपना मी टाइम बहुत पसंद होता है, कि हर वक्त दे डोंट वांट कि पीपल अराउंड देम, आगे पीछे लोग उनके हों, ऐसा नहीं होता, बट इनको आइसोलेशन बहुत पसंद है कि भाई मैं अपने साथ अपना टाइम गुजारना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो ये इनको थोड़ा सा रहता है, आई वॉन्ट माई मी टाइम। सो क्या लगता है आपको कि आइसोलेशन या डिटैचमेंट कितना फील करते हैं? गिव योरसेल्फ पॉइंट्स। ओके, यस, नाउ द लास्ट पॉइंट। अब केतु है ना, ऑफ कोर्स नॉलेज एंड विजडम, नॉलेज, विजडम ना। केतु इज द कारका ऑफ नॉलेज एंड विजडम, तो खासकर रिगार्डिंग ऑकल्ट साइंस बहुत नॉलेज रहता है इनको, डीप नॉलेज रहता है, और बहुत समझदार लोग होते हैं, बहुत ज्यादा समझदार लोग होते हैं। एंड दे कैन डू गुड जजमेंट यूटिलाइजिंग देयर नॉलेज, देयर एक्सपीरियंस, देयर अंडरस्टैंडिंग, देयर कॉमन सेंस, देयर इंसाइट्स। तो ये लोग ना कुछ करना चाहते हैं फॉर सोसाइटल चेंज, दे वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटल चेंज, कि हम कुछ करना चाहते हैं। क्या लगता है आपको कितने नॉलेजेबल एंड कितने समझदार आप लोग हैं? गिव योरसेल्फ पॉइंट्स। ओके, सभी समझदार हैं यहाँ पे, कोई नहीं बोलेगा कि मैं समझदार नहीं हूँ, मुझ में नॉलेज नहीं है। ओके, तो दे दीजिए अपने आप को पॉइंट्स आउट ऑफ 40 फॉर केतु। गुड, ग्रेट। Okay, 56. See, almost getting mostly above 35 or 30. So that was the reason I was asking you people, because कहीं ना कहीं अभी हम यहाँ पे connected हैं तो हमारा number 7 activated होता ही होता है। We all are in occult sciences and आप सब भी यहाँ पे connected हैं। And there's some other reason why we people are connected, because what I personally feel that we don't choose spirituality, spirituality chooses us. So that is the reason why we all are here, and आपके मैं तभी ये मार्क्स देखना चाहती थी केतु के। It's really good. Now, so let's talk about number 8. That is Shani. Shani. Shani is सेवक, सेवक भी कह सकते हैं, डिसिप्लिनेरियन भी कह सकते हैं। सो व्हाट इज शनि? शनि इज नॉट जज, इट इज अ मिथ। बहुत कहा जाता है कि जज जज, शनि इज जस्टिस सीकर। व्हाट वी कॉल इज शनि इज जस्टिस सीकर। वो हम कहते हैं ना कि अब फैक्ट्री में क्यों नहीं, हम इनको लेके चलते हैं लेबर क्लास या जो लोग भी काम करते हैं, एंड अब जैसे लेबर काम कर रही किसी फैक्ट्री में, तो कहते हैं ना भाई हमारी मांगे पूरी करो, वो होता रहता है ना उनका, हमारी मांगे पूरी करो।
तो ये लोग होते हैं ना, इनको अपनी लाइफ में ना हमेशा जस्टिस मांगना पड़ता है, एंड वी से शनि को हम एडवोकेट भी कह सकते हैं। एंड इन लोगों को अपनी लाइफ के हर सिचुएशन में जस्टिस मांगना पड़ता है। बी इट हस्बैंड कहेगा भाई मैं तो पूरी उम्र जस्टिस ही मांगता रहा, एक तरफ बीवी एक तरफ माँ, बीच में ही लगा रहा, मुझे जस्टिस आज तक नहीं मिला। लेडी, शी विल से हाँ भाई मैं तो घर पे, अब भाई कहीं मेरी सासू माँ, कहीं मेरे कुछ, मेरे को तो जिंदगी में कुछ जस्टिस नहीं मिला, वो हर वक्त रोना यही रहता है। या ये लोग अपने किसी वर्क प्लेस में हैं, एंड वहां पे इनको क्या होता है कि वहां पे भी इनको लगता है कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं हमें उसका उतना फल नहीं मिल रहा, या हमें उतना अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। अपने काम पे भी इनको हमेशा जस्टिस मांगना पड़ता है, अपने काम के लिए, अपनी पोजीशन के लिए इनको जस्टिस मांगना पड़ता है। तो क्या लगता है आप सबको, कितने जस्टिस सीकर हैं आप लोग? प्लीज गिव योर सेल्फ पॉइंट्स फ्रॉम 0 to 10। Okay. Yes, of course, we all are justice seeker in life. Okay, good. So, the second point, अब शनि है तो क्या दिमाग में आता है? आपने लिखा ही है, दैट इज हार्ड वर्क। शनि का साल है, 2024 है, वो डरा डरा के यूट्यूब में लोगों को इतना ज्यादा किया है। इट इज नथिंग। व्हाट डज शनि सेज? शनि कहता है हार्ड वर्क करो, रिजल्ट्स तो मैं दूंगा ही दूंगा। So by this year, if you are putting your hard work, by the end of year, you will receive your result also. और जो शनि रिजल्ट देता है वो हमेशा रिटेन रहता है लाइफ में, दैट इज ऑलवेज रिटेन्ड इन योर लाइफ। तो हमेशा हम कहते हैं ना कि देर इज नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क करोगे तभी आपको सब कुछ लाइफ में मिलेगा। बिना हार्ड वर्क के आपको लाइफ में कुछ नहीं मिल सकता। सो हार्ड वर्क इज देयर। और मोर ऑफ शनि को हम कहते हैं फिजिकल हार्ड वर्क। अब जैसे मून भी कॉल इमोशनल हार्ड वर्क, एंड मर्करी को हम कहते हैं इंटेलिजेंट हार्ड वर्क करता है। बट शनि को हम कहते हैं फिजिकल हार्ड वर्क, मोर ऑफ अ फिजिकल हार्ड वर्क। तो क्या लगता है कितने हार्ड वर्किंग है आप लोग? प्लीज गिव योरसेल्फ पॉइंट्स। Yeah, 10, 10, right? 3, चलो हाँ, इवन आई हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस थिंग, आई कन्फेस। मुझे भी थोड़ा करना पड़ता है, वर्क हार्ड तो मैं करती हूँ बट स्टिल हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग। ओके, गुड। ऑल राइट, सो द नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। सो शनि है तो डिसिप्लिन तो है ही है। हम कहते हैं कि दीज पीपल आर वेरी वेरी डिसिप्लिन। क्या होता है, सुबह अलार्म लगाया है, ठीक है, 6 बजे का अलार्म लगाया है। कोई लोग क्या है, वो 6 बजे का अलार्म है वो स्नूज होता जाता है हर 5 मिनट, हर 5 मिनट, तो वो आपका 7 बजे तक ही स्नूज होता रहेगा। और कोई लोग हैं कि 6 बजे का अलार्म लगाया है, 6 बजे उठना है, दे आर गोइंग फॉर द योगा क्लासेस, दे आर गोइंग फॉर दे आर गोइंग फॉर वॉक, दे आर कमिंग, दे आर डूइंग द मेडिटेशन, और कुछ भी अपना रूटीन है, नहा धो रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने ब्रेकफास्ट का टाइम है, प्रॉपर उनकी लाइफ रूटीन सेट है। वेरी वेरी वेल मैनर्ड, वेरी वेरी वेल डिसिप्लिन्ड दीज पीपल आर। सो क्या लगता है कितने डिसिप्लिन्ड हैं आप लोग? सो गिव योरसेल्फ पॉइंट्स फॉर डिसिप्लिन। 10, ओके, गुड। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, अब कहते हैं शनि को ना बदनाम किया हुआ है कि भाई शनि डिले करता है, मतलब बहुत डिले करता है, चीजें स्लो करता है। बट कभी किसी ने पूछा है कि क्यों, क्यों डिले करता है और क्यों स्लो होते हैं? व्हाई? बिकॉज व्हाट, शनि वांट्स परफेक्शन। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज परफेक्शन। अब आई रिलेट टू दिस पॉइंट बिकॉज वो कहते हैं ना परफेक्शन का कीड़ा,
कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए लाइफ में। तो ये लोग ऐसे होते हैं कि अगर जैसे अगर ये नोट्स भी बना रहे हैं ना, प्रॉपर नोट्स विद डिफरेंट पेन्स, अंडरलाइन कर रहे हैं यूजिंग स्केल, कंपास, एवरीथिंग। या अगर ये कल को अपने घर में कोई डिनर भी होस्ट कर रहे हैं, दे आर होस्टिंग एनी डिनर इन देयर हाउस, सो तब भी ये लोग बहुत परफेक्शन के साथ करेंगे कि एक एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए घर पे, एवरीथिंग दे आर वेलकमिंग एंड दे आर डूइंग एनीथिंग, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए इनके लाइफ में। सो क्या लगता है कितने परफेक्शनिस्ट हैं आप लोग? सो गिव योरसेल्फ पॉइंट्स फ्रॉम 0 to 10। ओके, एंड इवन आई रिलेट टू इट, परफेक्शन का कीड़ा बहुत ज्यादा है। ओके, डिसिप्लिन में थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है, दैट इज लिटिल बिट टफ फॉर मी, बट okay. Good, good, good. So give yourself points from 40 for number 8 for Shani. 57. Great, good, nice. Okay. Next. So next is we come to number 9. One of my favorite, number 9. So number 9 is Mars. Mars is warrior. Warrior, सेनापति. तो व्हाट डू यू थिंक, अब एक वॉरियर, एक सेनापति जंग में खड़ा है, एंड कैसे डिसीजंस या एक्शंस उसको कैसे लेने पड़ते हैं एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, कैसे उसको डिसीजंस या एक्शंस लेने पड़ते हैं इफ वॉरियर इज स्टैंडिंग, या कोई सेनापति जंग के मैदान में है? यस, इट्स इंस्टेंट, इट्स क्विक एक्शंस, इट्स क्विक एक्शंस, क्विक एक्शंस। अब नाउ एज हम कहते हैं कि सेनापति है, जंग में खड़ा हुआ है, कोई भी डिसीजन उसे लेना होगा बहुत क्विकली लेगा, वो सोच ही नहीं सकता ना, उसके पास उस टाइम सोचने का टाइम है। एंड बहुत बार ये होता है कि दे आर लाइक कि हाँ भाई कुछ भी लिया, एकदम अपॉर्चुनिटी आई नहीं, ये लोग ऐसे होते हैं, अपॉर्चुनिटी आई नहीं तो बस उसको ग्रैब कर लो, ये नहीं सोचेंगे उसका रिजल्ट क्या है। दे विल नॉट फील द रिजल्ट कि भाई उसका रिजल्ट बहुत बार हो सकता है पॉजिटिव भी हो, और बहुत बार हो सकता है कि उसका रिजल्ट नेगेटिव भी हो। इट कैन बी अदर वे राउंड, कुछ भी हो सकता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट दे टेक क्विक एक्शंस, वो सोचेंगे ही नहीं कि इसका रिजल्ट क्या है। सो क्या लगता है आप लोगों को कितने क्विक एक्शन टेकर हैं आप लोग? सो गिव योरसेल्फ पॉइंट्स फ्रॉम 0 to 10 एवरीवन। गुड, ऑलराइट। सो नेक्स्ट, अब नंबर 9 है, क्या होगा? भर भर के होता है, व्हाट इज दैट? दैट इज, यस, दैट्स अग्रेशन, दैट्स अग्रेशन। नाउ नंबर 9 है, एक अग्रेशन रहता है, हम कहते हैं ना कि बस वो म्याम से तलवार कब निकले तो बस रेडी हैं, बट व्हाट आई थिंक कि अगर ये अपना अग्रेशन अपने काम में निकालें या किसी फिजिकल एक्टिविटी में निकालें तो दैट इज बेस्ट फॉर देम। और बहुत बार ये होता है, ऑलवेज से इन माय कंसल्टेंसी ऑल्सो और टू माय स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि जो अग्रेशन है ना, वो आपका या तो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में निकलना चाहिए या किसी भी आपके वर्क प्लेस पे निकलना चाहिए, अपने काम में निकलना चाहिए, सो दे विल ऑलवेज डू वेरी गुड। सो कितने अग्रेसिव हैं आप लोग? गिव योरसेल्फ पॉइंट्स फ्रॉम 0 to 10। ओके, ऑलराइट, वेरी नाइस, गुड। So next, so the next quality of number 9 is, that is even my favorite. Like this is the very beautiful, जिसे हम कहते हैं ना, quality होती है नंबर 9 वाले लोगों की. That is, they are very very humanitarian. Humanitarian. They are very very humanitarian. Now, बहुत दरिया दिल लोग होते हैं,
बहुत दरिया दिल, हम इन्हें कहते हैं दानवीर करण होते हैं। मतलब ये ऐसे होंगे कि इनके पास पैसे बेशक 1000 रुपए खुद के पड़े होंगे, कोई मांगने आएगा ना, जरूरत में होगा, वो दे देंगे उसको। ऐसे लोग होंगे कि आधी रात को भी आपको इनकी जरूरत है, दे आर ऑलवेज रेडी फॉर योर हेल्प। तो दे आर वेरी वेरी ह्यूमैनिटेरियन पीपल, बहुत अच्छे दिल के होते हैं। और आप देखेंगे कहीं ना ये किसी भी चैरिटी या एनजीओ से जुड़े होते हैं, इनको डोनेशंस का, चैरिटीज का, ये बहुत ये सब करते हैं। सो कितने ह्यूमैनिटेरियन हैं आप लोग। सो गिव योरसेल्फ पॉइंट्स फ्रॉम 0 to 10। एंड आई थिंक ह्यूमैनिटेरियन सबको होना भी चाहिए। दैट इज योर ब्लेसिंग अकाउंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ब्लेसिंग अकाउंट। आप हर चीज, हम कहते हैं ना, कोई हमारे ग्रिड में चीजें हैं दैट इज नॉट वर्किंग, या हर चीज, तब भी हम लाइफ में अगर हमारा ब्लेसिंग अकाउंट अच्छा है ना, तो वो चीजें हमारी वैसे ही टल जाती हैं। We pass over those things. So it's very important to be humanitarian, to do good deeds, and to have a good blessing account. Great. So the next quality, अब आप बताइए, सेनापति है, जंग में खड़ा हुआ है, ठीक है। सो क्या अप्रोच रहती है, व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ दैट वॉरियर, किस लिए हैं वो, व्हाट आर दे फॉर, वहां पे कहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं वो उस जंग के मैदान में। Yes, they never give up. They have a good fighting spirit. Fighting spirit. Now, नंबर 9 इज अ फाइटर नंबर, मतलब ये कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं। अब जैसे जंग में कोई सेनापति खड़ा है, कुछ भी हो जाए, बट वो एकदम ऐसे खड़ा रहेगा, कोई चीज उसको हिला नहीं सकती, कोई पत्थर उसे हिला नहीं सकता। सेम ये लोग होते हैं, इनकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए, बुरी से बुरी सिचुएशन भी आए, दे फाइट फॉर इट, दे ऑलवेज फाइट फॉर इट। कभी नहीं, अगर गिरेंगे भी, दे विल ऑलवेज बाउंस बैक। तो इनकी फाइटिंग स्पिरिट बहुत स्ट्रांग होती है, दे आर रेडी फॉर एनी सिचुएशंस इन देयर लाइफ, बुरी से बुरी सिचुएशन भी हो। सो कितनी फाइटिंग स्पिरिट आपकी अच्छी है, गिव योरसेल्फ पॉइंट्स फ्रॉम 0 to 10। ओके, गुड, नाइस, ओके, फाइन। ओके, तो चलिए दे दीजिए अपने आप को आउट ऑफ 40 फॉर मार्स नंबर 9। गुड, ग्रेट, 40, 40, 51, वेरी नाइस, अमेजिंग, ठीक है। So this was the way how we analyze these 9 numbers. Let me just stop sharing the screen. Yes. Please switch on your cameras, everyone. Switch on the cameras. Yeah. So हम कहते हैं कि जब नंबर को हम एनालाइज करते हैं, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं पहले कि खुद में, कि आपने क्वालिटीज देखी, आपने अपने आप को पहचाना कि आप कहाँ पे यू आर देयर इन लाइफ, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आपको ये एक्टिविटी कैसी लगी। आई वांट टू आस्क एवरीवन, आपको ये एक्टिविटी कैसी लगी, कैन राइट इन द चैट बॉक्स। ग्रेट, या सो दिस इज द या दिस इज द इंटरेस्टिंग वे, हम कहते हैं ना कि टू लर्न। एंड यूजुअली इन माय क्लासेस, जैसे मैंने आपको उस दिन स्टोरी फॉर्म में बताया, जो नंबर की सीक्वेंस है, आज मैंने आपको एक एक्टिविटी के थ्रू इन नंबर्स को डीकोड करना बताया। सो इट इज ऑलवेज लाइक दैट, मजा आ गया, थैंक यू सो मच। सो इट इज ऑलवेज लाइक दैट कि लर्निंग ना जब आपकी इजी वे में होती है ना, दैट गो स्ट्रेट इन योर माइंड। नाउ दिस वाज योर सेल्फ एनालिसिस, दिस वाज योर सेल्फ एनालिसिस जो आप लोगों ने खुद किया है, एंड द इजी थिंग्स दे गो वेरी स्ट्रेट टू योर माइंड। तो दिस इज ऑलवेज माई वे ऑफ टीचिंग, एंड क्लासेस में भी मेरा ऐसा ही रहता है। एंड इसमें मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो हमने एनालिसिस किया है, सो दीज आर द 36 पॉइंट्स जो हमने वर्क किया है। सो दीज आर द 36 रेमेडीज, दीज आर द 36 रेमेडीज इन फ्रंट ऑफ यू। अब वो कैसे, मैं आपको अभी बताऊंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सबसे स्ट्रॉन्ग जो नंबर आपका है और सबसे वीक जो नंबर है, आप चैट बॉक्स में लिखें।
आपने पॉइंट्स दिए हैं आउट ऑफ 40. सो विच इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर, ठीक है, एंड विच इज योर वीकेस्ट नंबर? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. Okay, the strongest and the weakest number. ये पॉइंट्स आपने खुद ही दिए हैं. सो क्या होता है, हम इन्हें कैसे देखेंगे कि जो आपका नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर आ रहा है, जो प्लैनेट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आ रहा है, ऑब्वियसली दैट इज गुड. दैट आप कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली उस नंबर पे, उस प्लैनेट पे वर्क कर रहे हैं, और अभी सबसे ज्यादा वो आपका एक्टिवेटेड हुआ हुआ है और आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है वो नंबर, ठीक है. एंड द प्लैनेट और द नंबर दैट इज वीक, व्हाट आई पर्सनली फील, सारे नंबर्स की ब्लेसिंग्स होना लाइफ में इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to have the blessing of all the numbers, all the 9 numbers. So इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी numbers आपके weak आए हैं, जो सबसे below 25 आए हैं, उसमें you have to work on it. आप कैसे work करेंगे? Suppose किसी का sun weak है, if the sun is weak, तो क्या करना है? नंबर 1 वीक है ना, अपनी लीडरशिप स्किल्स को बढ़ाइए. इंक्रीज योर लीडरशिप स्किल्स. ऑब्वियसली जैसे लीडरशिप स्किल्स को आप बढ़ाएंगे, नंबर 1 आपका स्ट्रांग होने शुरू हो जाएगा. सिर्फ सूरज को जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा. इट इज लाइक टेम्पररी रेमेडीज. आई विल बी गिविंग यू ऑल ऑफ दीज रेमेडीज, बट जो आप प्रैक्टिकली अपने आप और अपने बिहेवियर पे वर्क करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज एवर लास्टिंग. तो नंबर 1 अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, अपने लीडरशिप स्किल्स को आप बढ़ाइए. नंबर 2 वीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी केयरिंग फॉर पीपल. आपको एक केयरिंग और एक नर्चरिंग नेचर रखना पड़ेगा, सो दैट आपका नंबर 2 स्ट्रॉन्ग होएगा. नंबर 3 वीक है, तो क्या करना है? जुपिटर है ना, तो कोचिंग क्लासेस लीजिए, कोई लर्निंग ऐड करिए, कोई लर्निंग कोर्स आप ऐड करिए. ऑब्वियसली जब आप अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे, अपनी लर्निंग स्किल्स को बढ़ाएंगे, तो जुपिटर आपका स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा. अब सिर्फ सोने की चेन डालने से तो जुपिटर होने से रहे जुपिटर जी आपके स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है. सो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट. वो परमानेंट रहेगा आपके साथ. अब नंबर 4 राहु, राहु वीक है, तो क्या करना है? बी डिसिप्लिन, बी ऑर्गेनाइज्ड, बी सिस्टमैटिक. आप ये जिस दिन करने लगेंगे, आपका नंबर 4 स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. नंबर 5 अगर आपका वीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कीजिए, अपनी स्पीच को अच्छा कीजिए, लोगों के साथ अच्छे से बात करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएंगे. ऑब्वियसली नंबर 5 आपका स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा. नंबर 6 वीक है, वीनस वीक है, व्हाट यू हैव टू डू, बी वेल ड्रेस्ड, बी वेल प्रेजेंटेबल, एंटरटेनिंग रहिए, ठीक है. अपनी गर्लफ्रेंड है या अपना स्पाउस है, रोज दे दीजिए 10 रुपए का, इट इज हिलेरियस. देंगे तो चलो वीनस अपने आप आपका जाएगा, और मतलब स्ट्रॉन्ग होएगा. सो इट इज लाइक दैट कि बी वेल ड्रेस्ड, तो वीनस अपने आप आपका स्ट्रॉन्ग होते जाएगा. देन नंबर 7 अगर आपका वीक है, तो इंक्लूड मेडिटेशन इन योर लाइफ. मेडिटेट करिए रोज, डेली 3 to 5 मिनट्स भी मेडिटेट करेंगे ना, तो केतु जी वहीं खुश हो जाएंगे. नंबर 7 आपका वहीं पे ही स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा. नंबर 8 वीक है अगर आपका, शनिदेव वीक है, तो शनिदेव क्या कहते हैं? हार्ड वर्क करो, बस हार्ड वर्क करोगे, नंबर 8 वैसे ही स्ट्रांग होने शुरू हो जाएगा. और कुछ नहीं चाहिए शनिदेव को, शनिदेव को सिर्फ हार्ड वर्क चाहिए. नंबर 9 वीक है, तो क्या करेंगे? डोनेशंस कीजिए, चैरिटी दीजिए, थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन नेचर रखेंगे, इस तरह की चीजें करेंगे, तो ऑब्वियसली नंबर 9 आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. सो यही पॉइंट्स हैं जो हमने 36 पॉइंट्स के बारे में अभी बात की है ना, 444. अगर यही आप 36 पॉइंट्स पे वर्क करेंगे, तो ऑब्वियसली सारे नंबर्स की ब्लेसिंग्स आएंगी ही आएंगी. एंड दिस इज वेरी इजी. इसके लिए आपको कोई जाप नहीं करवाने, कोई पूजा नहीं करानी, कोई हवन नहीं कराने, नथिंग, कुछ नहीं कराना है. और अभी तो हमने ये सिर्फ 4 पॉइंट्स के बारे में बात की, आगे जाके तो हम बहुत पढ़ने वाले हैं. दिस इज नॉट इवन 5%. This is not even 5% what we have to learn in our further courses. So I repeat once again, this is not even 5% जो आगे हमें अपना एडवांस कोर्स में करना है. So the level of studies you can know कि कैसे करना है. So
ईगो नहीं है तो ऑब्वियसली आपको अपना ये जो ईगो है, यू हैव टू हैव सम हेल्दी ईगो। आप हर टाइम नहीं किसी की सुन सकते, गलत क्यों सुनना है। एक हेल्दी ईगो रखनी पड़ेगी, अपना बिहेवियर को वैसा बनाना पड़ेगा। तो यही आपको मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट डे में, वी टॉक्ड अबाउट द अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड बिहेवियरल चेंज। तो यही आपको बिहेवियरल चेंज लाना है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द थिंग। अब मेरे को आपको टू गिव यू द बिगेस्ट रेमेडी, जो हमें अपने पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर के हिसाब से देखना है। एंड आई विल बी गिविंग यू अ रेमेडी विच विल हेल्प यू in making your professional life superb. I will give you a remedy which will help you to make your personal life superb. तो उसके बारे में हम बात करेंगे, बट बाय द एंड ऑफ द सेशन, उससे पहले मैं आप सबके साथ अपना सिलेबस शेयर करना चाहती हूँ, व्हाट आई वाज टेलिंग यू। एंड जो हम अपना सिलेबस में करूंगी, दैट इज ऑल 5 levels of numerology what I have designed, and I've really taken lot of time in just designing this course, just designing in course, a vast course, it includes everything। आपको कहीं आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, so just give me some time। और उससे पहले मैं पूछना चाहूंगी आपको कैसे लगे मेरे टीचिंग स्किल्स, या आपको आप मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे, like you want to continue this journey with me? If yes, then type me in the chat box, I just want to know ना, कभी कभी तारीफें अच्छी लगती हैं। so no, but it should be genuine। so क्या आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे, या क्या आप लोग इस कोर्स को में ज्वाइन होना चाहेंगे? so I always welcome you all to the Salsa family। thank you so much, thank you जी। कौशिक जी, I don't believe in कुआ number at all। इट इज नथिंग, कहीं पे भी नहीं बताया गया है, नो हिस्टोरिकल बुक्स, नथिंग। इट इज जस्ट खुश करने के लिए होता है, एक नंबर हमने डाल दिया ग्रिड में, तो दैट इज अ लकी नंबर, एंड नो, आई डोंट बिलीव इन दैट, वी डोंट बिलीव इन दैट। या okay, thank you so much everyone for the wonderful responses in the chat box। so I'll be there, just give me 30 seconds and we'll have a 30 seconds water break, and I'll be coming back and I'll be sharing the whole syllabus with every one of you। see you all।